but my first semester was one of the hardest days of my life. The symptoms, the surprise, the struggles, no one prepared me for. In this video, I'm going to cover mental side of first semester. Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new here, let me tell you, I am Faiza and currently I'm in my second trimester. So people say pregnancy is beautiful, but my first trimester was one of the hardest phase of my life. If you are in your first trimester or about to enter one, let me tell you what actually happens because no one told me this. I recently shared my life update with you all, but in this video, I'm only going to talk about my first trimester, the symptoms, the surprise, the struggles no one prepared me for. I know every pregnancy is different, but if this video helps even one mom feel a little less alone, this video is going to be worth it. In this video, I'm going to cover number 1, symptoms of first trimester no one tells you. Second, mental side of first trimester, what actually helped me, what I wish someone told me before. So let's talk about part 1, the first trimester symptoms no one tells you. First is extreme fatigue. Trust me, your body is working overtime to grow your baby. So all your energy is going over there. Just slow down and rest in this time. बिल्कुल भी आपको guilt feel नहीं करना है while resting, like you're not doing enough or you're not being productive. क्योंकि ये एक ऐसा time है ना कि even though if you are resting, your hormones, your blood levels are working 24/7 to give that perfect energy for growing the baby, in short, because you're growing a life inside you and it's not a joke. So just rest. Then we talk about smell sensitivity. As I told you, मैं रूम फ्रेशनर के बिना मैं वर्क नहीं करती थी. मैं बेडरूम में हूँ तो आई ऑलवेज यूज टू कैरी अ रूम फ्रेशनर बिसाइड मी, क्योंकि मुझे ऐसा होता था मुझे कभी भी गंदी स्मेल आने लग जाती थी कहीं से भी, मतलब इवन दो. एंड मेरे हस्बैंड वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई एम लाइक, आर यू नॉट स्मेलिंग एनीथिंग? ही इज लाइक, नो, एवरीथिंग इज नॉर्मल. आई सेड ओके, आई एम ग्रोइंग अ लाइफ इनसाइड मी, ठीक है, तो मुझे ये गंदा स्मेल आ रहा है. सो आई यूज टू कीप ऑन स्प्रेइंग द एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर एवरी लाइक 15 to 20 minutes. मेक श्योर कि आप एकदम क्लोज रूम में एयर फ्रेशनर यूज मत करो, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबी, बिकॉज केमिकल्स होते हैं रूम फ्रेशनर में. बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो गंदी स्मेल करने से अच्छा, बिकॉज मुझे नॉजिया फील होता था रूम फ्रेशनर यूज ना करूँ तो. सो आई यूज टू यूज अ रूम फ्रेशनर. मैं किचन में एंटर नहीं करती थी. मैं लिटरली 3 months आई डिड नॉट एंटर इनटू द किचन अनलेस बहुत ज़्यादा मजबूरी है, लाइक कोई है नहीं घर पर एंड आई हैव टू गेट इनटू द किचन टू ईट समथिंग, फ्रूट्स एंड ऑल. तो बस वही, और मैं पूरा टाइम लिक्विड, दही, फ्रूट्स इसी पर थी. मतलब मोस्टली मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, बट स्टिल आई यूज टू बी लाइक कि कुछ तो खाना पड़ेगा बिकॉज माई बेबी इज इनसाइड, आई कैन नॉट स्टार्व, मैं हंग्री नहीं रह सकती, सो आई हैव टू ईट एनी. भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक एज आई टोल्ड यू, एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी इज डिफरेंट. यू कैन शेयर मी योर हार्मोनल चेंजेस एंड योर सिम्टम्स विच यू फेस्ड इन दिस टाइम. Again, I'm going to let's talk about part 2, the mental side of the pregnancy first trimester. मैं आप लोगों को अगर बोलूँ तो physically it was hard, but mentally it was even harder for me. I actually felt guilty for not being productive, क्योंकि मैंने just career break लिया था to be a content creator. मैं content start कर चुकी थी in fact, but due to roller coaster in my life going on, I had to stop my content creation. तो मैं थोड़ा सा mental breakdown मेरा उस वक्त इसलिए भी हो रहा था कि I was not able to continue my content creation, क्योंकि ट्रस्ट में मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती थी, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड मेंटल स्टेबिलिटी. और उस वक्त आई यूज टू क्वेश्चन माई सेल्फ अ लॉट कि एम आई नॉट डूइंग इनफ बिकॉज आई एम नॉट बीइंग प्रोडक्टिव. आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल फॉर 5 years और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था ये फेस टू जस्ट रेस्ट कम्प्लीटली विद नो एनर्जी. मैं पूरा दिन रेस्ट करती थी बट स्टिल मेरे बॉडी में कभी एनर्जी बचती नहीं थी. मुझे बहुत बहुत नेगेटिव फील होता था कि प्रॉब्ली आई एम नॉट डूइंग इनफ, क्योंकि मैंने जॉब तो छोड़ दी थी बट कंटेंट क्रिएशन पे मुझे फोकस करना था. बट आई वाज नॉट इवन एबल टू डू द कंटेंट क्रिएशन बिकॉज ऑफ दिस. समटाइम्स मुझे ऐसा लगता था ना कि आई जस्ट नीड वन नॉर्मल डे, क्योंकि 3 months इज इक्वल्स टू 90 days एंड मुझे पता कि हाउ मैंने वो फेस गुजारा है. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब नॉर्मल हो जाऊँगी. आई यूज्ड टू फील कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ. मैं कभी भी आई एम फीलिंग बेटर. आई हैड अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था. मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी. इनफैक्ट विद माई हस्बैंड ऑल्सो आई वॉज नॉट टॉकिंग मच. मैं उनसे भी इतना बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं बचती थी कि मैं कुछ बात करूँ. ठीक है, मैं खुद में आराम कर लूँ, मैं खुद को थोड़ा सा खाना खिला दूँ, मैं थोड़ा सा खुद बेटर फील कर लूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. नाउ कम पार्ट 3, व्हाट एक्चुअली हेल्प्ड मी ओवरकम माय सिम्टम्स और स्ट्रगल्स. आई मीन सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, बट दिस इज व्हाट हेल्प्ड मी. मेरे लिए मॉर्निंग में मतलब नॉजिया कभी अगर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो, सो आई यूज टू प्रिफर जिंजर वाटर. ठीक है, मैं 2-3 स्लाइसेस ऑफ जिंजर के ले लेती हूँ, देन आई बॉयल दैट इन अ वाटर और मैं वही कंज्यूम करती थी. लाइक हाफ अ कप इज़ ऑल्सो गुड. अगर आप वो ले सकते हो तो वेल एंड गुड. अदरवाइज नॉजिया के लिए डॉक्टर्स यूजुअली रिकमेंड करते हैं बहुत सारी टैबलेट्स, बट ऑलरेडी बॉडी में इतनी सारी टैबलेट्स जा रही थी, फॉलिक एसिड एंड ऑल. एज आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में यू टेक फॉलिक एसिड्स एंड अदर मेडिकेशंस डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स एंड योर बॉडी. तो फॉलिक एसिड के साथ में मुझे ऑलरेडी और कोई मेडिसिन नहीं लेनी प्रेफर करती थी मैं. सो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था एक नॉजिया के लिए टैबलेट, बट मैं वो यूजुअली नहीं कंज्यूम
मॉर्निंग करती थी, क्योंकि उसके बाद है ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब मेरे बॉडी में और एनर्जी लेवल कम कम हो गई है। तो मैं प्रेफर करती थी कि जिंजर वाटर मैं पीऊँ। आई यूज टू बॉयल दैट वाटर, हाफ अ कप इज वेल एंड गुड। सेकेंड मैं ये करती थी ना कि आई यूज टू टेक 4 to 5 मील्स अ डे। मतलब मैं हर 2 घंटे में एप्पल खा लूँ, जूस पी लूँ या कर्ड खा लूँ, कर्ड राइस खा लूँ, मैं ऐसे करती थी। क्योंकि रादर देन ईटिंग फुल मील, तो पहले आप पहली बात फर्स्ट सेमेस्टर में आप खा नहीं सकते हो, मैं तो नहीं खा सकती थी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो मैं प्रेफर करती थी ना कि मैं हर 2 घंटे में कभी कोई स्नैक्स हो गया, बिस्किट्स हो गया। मुझे स्नैक्स में भी सारे स्नैक्स आई वॉज नॉट एबल टू ईट, मैं सारे फ्रूट्स भी नहीं खा पाती थी। हार्डली आई यूज टू हैव वन ऑरेंज और पोमोग्रेनेट मेरे हस्बैंड मुझे कट करके देते थे, मतलब पील ऑफ करके, बट मुझे वो भी कभी खाने नहीं होता था। तो मुझे जो होता था लाइक बनाना एंड ऑल, समटाइम्स ओट मील मैं खा लेती थी। बट आई यूज टू प्रिफर 2-3 आवर्स में मैं कुछ ना कुछ खाऊँ, रादर देन हैविंग बिग मील्स, क्योंकि बिग मील्स तो वैसे भी खाने नहीं होता था। थर्ड मैं ये करती थी ना, आई यूज टू रेस्ट विदाउट गिल्ट। एज आई टोल्ड यू कि आपकी बॉडी 24/7 काम कर रही है, आराम करो। और फर्स्ट सेमेस्टर में जितना हो सके आप आराम करो, बिकॉज ये टफेस्ट फेस ऑफ द प्रेगनेंसी होता है। मतलब आई एम नॉट श्योर, मैं सेकेंड सेमेस्टर में जब से आई हूँ तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। मतलब मुझे मेरे हॉर्मोन्स थोड़े से बैक टू बैलेंस हो चुके हैं, तो अभी आई एम फीलिंग नॉर्मल। बट थर्ड सेमेस्टर आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू कीप द जर्नी शेयरिंग विथ यू ऑल कि मैं कैसे फील कर रही हूँ, क्या उसके सिम्टम्स है अलग। आई एम श्योर थर्ड सेमेस्टर के अलग सिम्टम्स होंगे, अलग चैलेंजेस होंगे जो हम साथ में ओवरकम करेंगे होपफुली। कभी कभी ऐसा लगता था ना कि मुझे किसी से बात करने का मन करता था, सो आई यूज्ड टू कॉल माय सिस्टर, ऑफ कोर्स माय मदर, देन आई यूज्ड टू टॉक टू माय हस्बैंड लाइक व्हाट आई एम फीलिंग। सो इस टाइम पे आप मेक श्योर करो कि आपका जो सराउंडिंग है दैट्स बेटर, क्योंकि जो लोग आपके जो सराउंडिंग में रहते हैं दैट रियली मैटर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में, आपके चैलेंजेस को बढ़ाने में और कम करने में। सो मेक श्योर करना कि आप जिस किसी के भी साथ रह रहे हो, अगर आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे हो तो मेक श्योर करो उनके साथ में आपका रिलेशन अच्छा हो, क्योंकि ये टाइम पे ऑलरेडी बहुत बहुत आप इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हो। तो मेक श्योर करना कि आप अपना ख्याल ज़्यादा रखो, स्ट्रेस कम लो, और किसी ऐसे इंसान से बात करो यार जो तुम्हारा मूड अपलिफ्ट कर देता हो, जो आपको बेटर फील करवाता हो, जो आपको ये ना बोले कि आप पूरा दिन आराम करते रहते हो या जो भी है, क्योंकि ये टाइम पे आपको सिर्फ आराम करना है, ट्रस्ट मी। और आपको करना ये भी है कि अवॉइड स्ट्रॉन्ग स्मेल्स। मैं तो परफ्यूम्स एंड ऑल अवॉइड करती थी, माना, बिकॉज मैंने ऐसा सुना है, तो मेरी डॉक्टर भी मुझे बोलती थी कि अगर आप क्लोज्ड घर पर हो, क्लोज्ड डोर्स में या घर पर हो, तो मेक श्योर करो आप केमिकल जो परफ्यूम्स होते हैं वो ना यूज़ करो, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबी। बिकॉज आपके जब आप अपने स्किन पे कोई परफ्यूम लगाते हो वो ब्लड स्ट्रीम से आपके बेबी तक के भी पहुंच सकता है, विच इज़ नॉट गुड। तो आप मेक श्योर करो अतर जो होता है आप वो लगा सकते हो, बिकॉज बट वो भी बहुत माइल्ड, और ज़रूरत है तो फॉर एग्जाम्पल कहीं आप बाहर जा रहे हो और आप प्रेफर करते हो कि स्मेल लाइक यू स्मेल गुड, तो आप थोड़ा सा वो अमाउंट यूज़ कर सकते हो, बट दैट टू नॉट ऑन योर स्किन। मेक श्योर करो कि आप वो अपने कपड़े पे हल्का सा लगा लो, क्योंकि अगर आप अपने स्किन पे लगाते हो तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके बॉडी बेबी तक जा सकता है, विच इज़ नॉट गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई विश समवन टोल्ड मी बिफोर। आई विश समवन टोल्ड मी दैट द फर्स्ट trimester is not magical, because there are millions of women who go through this quietly. You're actually growing a life inside you. Your body is doing an incredible job even if you feel low. And one more thing I would like to tell you here, कि please do not and never compare your pregnancy to anyone else, because every pregnancy इन एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में शायद कोई और सिम्टम्स या हॉर्मोन्स हो, और सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई और हो। सो डू नॉट जज। और सोशल मीडिया पे किसी की लाइफ देखकर प्लीज़ अपने आप को कम मत समझो। यू आर ऑलरेडी डूइंग सो मच ऑलरेडी फॉर योर बेबी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड until we meet in my next vlog. Thank you so much for watching. Bye bye.